ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی گوہروں کے کرشموں سے استفادہ کیجیے اور آج ہی ہم سے ربط پیدا کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پریشانی پیسوں کی ہو، پریشانی صحت کی ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو، بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا دوست احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کا تجسس ہو، کنفیوژن ہو، آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہو، انٹرویو میں فیل ہو جا رہے ہوں، سروس نہیں لگ رہی ہو، بزنس سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، بزنس میں ناکامی ہو رہی ہو یا شادی نہیں ہو رہی ہو، کسی بھی طرح کا کی پرابلم ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، سکون نہیں ہو، تو آپ اس پروگرام میں کال کر کے تسکین حاصل کر سکتے ہیں، اپنا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک، انٹرنیشنل پرسنالٹی ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ آئی ناظرین، آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں مل کر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ جناب۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام کا اگر حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے سب سے پہلے ان کا نام بتائیے یا اپنا نام بتائیے، اس کے بعد تاریخ پیدائش بتائیے، ڈیٹ آف برتھ بتانے کے بعد جگہ کا نام بتائیے، اس کے بعد آپ جو ہے اپنے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کئی ایک عنوانات پر روشنی ڈالی ہے، وقتاً فوقتاً آپ جو ہے روشنی ڈالتے رہتے ہیں الگ الگ عنوانات پر، چونکہ اب لوگوں کے بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، بچوں سے لے کے بڑوں تک ڈگری کے بھی امتحانات ہونے والے ہیں، تو جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا امتحانات میں اچھے نمبرات لانا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جواہرات کا کرشمہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ضرور جناب۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ راحل صاحب کا سوال علم کو لے کر تھوڑا ہم ڈسکس کر لیں گے۔ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ہر مذاہب میں علم کو کتنی اہمیت دی گئی ہے، علم سے انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، تعلیم کس لیے فرض کیا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جن کی زندگی میں علم حاصل کرنے کے لیے پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، ان کے لیے جواہرات کا کرشمہ کیسے مدد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں علم کے بارے میں بہت سی جگہوں پر ڈسکس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی جو قرآن مجید میں جو قسم کھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے قلم کی اور اس کی لکھی ہوئی تحریر کی۔ مطلب کیا ہے؟ قلم کی، جس کو پین کہا جاتا ہے، سب سے پہلی جو قسم کھائی گئی ہے، اتنا بڑا مقام ہے علم کا۔ علم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کا حاصل کرو گہوارے سے لے کر گور تک۔ مطلب جیسے ہی بچپنا شروع ہوا وہاں سے لے کر بڑھاپا، مرنے کے دن تک، کل موت آ رہی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، کل تک بھی آپ علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مطلب کرنا ہے، فرض کیا گیا ہے علم کے بارے میں۔ علم سے ہی انسان زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ سماج کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے جو سب سے بڑا جو اسلحہ ہے وہ ہے علم کی طاقت۔ جس کے پاس علم کی طاقت ہو، ہر رسومات سے آگے بڑھ سکتا ہے، ہر مشکلات کا سامنا کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور علم کی شان تھوڑا بتا دوں، حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، حضرت علیہ السلام بہرحال مذاہب میں جانتے ہیں، فاتح خیبر، فاتح خندق، ان کے بارے میں ان کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، علم کے بارے میں الگ الگ سوالات کرتے ہیں، یا علی علم کی اہمیت زیادہ ہے یا دولت کی اہمیت زیادہ ہے؟ تو فرماتے ہیں مال خرچ کرنے سے ختم ہوتا جاتا ہے، علم کو جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ کیا بات ہے! کسی نے پوچھا کر علم کی اہمیت کتنی ہے، کیا مال افضل ہے، کیا علم افضل ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ اور کوئی دوسرا آگے سوال پوچھتا ہے، یا علی علم کی اہمیت کتنی ہے، کیا مال افضل ہے یا علم افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں
इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान की खुद हिफाजत करता है, लेकिन एक माल ऐसी चीज है इंसान जिसकी हिफाजत करना पड़ता है। मतलब माल की हिफाजत इंसान को करनी पड़ती है। लाकर लेकर आए, चाबी डाली, लोगों को खड़ा दिया, सिक्योरिटी गार्ड। आजकल देखते हैं ना, हर एक एटीएम के पास लोग खड़े रहते हैं, मतलब गन गिन दे के खड़े रहते हैं, क्योंकि चोरी ना हो, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए पुलिस को खड़ाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड देते हैं। मतलब माल को बचाने के लिए लोगों को तैनात करना पड़ता है, इंसान को जागना पड़ता है, परेशानी उठाना पड़ता है। इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान खुद बचाता है। क्या बात है। और कोई आगे पूछता है या अली इल्म अफजल है या दौलत अफजल है, माल अफजल है, इल्म अफजल है? तो फरमाते हैं माल आने से इंसान दुश्मन बन जाते हैं, इंसान दुश्मन बढ़ जाते हैं। इल्म आने से इंसान के दोस्त बन जाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। जैसे ही किसी के पास पैसा आ गया, कुछ लोग हसद की वजह से या जलन की वजह से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ सवाल कर जब पूरा नहीं होता तो दुश्मन हो जाते हैं। मतलब जिसके पास पैसा होता है लोग उससे दूरी इख्तियार करते हैं, जिसके पास इल्म होता है लोग उसके करीब जाते हैं। और कोई आके सवाल पूछा या अली इल्म अफजल है या माल अफजल है? तो फरमाते हैं माल इस दुनिया तक के लिए है, लेकिन इल्म यहां से लेकर खब्र तक, खब्र से लेकर हश्र तक, यहां तक बरज़ख, यहां तक के जन्नत को लेकर जानने तक साथ रहेगा। जब तक इल्म, देखिए इल्म क्या किसे कहते हैं? इंसान ने कोई चीज देखी, जैसे उस चीज को देखा, दिल पर अटैक किया, दिल पर असर किया। जैसे ही दिल पर असर करता है, दिल तो बादशाह है ना, हर इंसान के जिस्म में जो दिल होता है बादशाह कहा जाता है। जैसे ही बादशाह के ऊपर असर हुआ, ख्वाहिश बढ़ी, इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है। मतलब इल्म की वजह से इंसान अमल लाता है। जितना तुम इल्म हासिल करोगे उतना खुदा के करीब हो जाओगे, उतना मारिफत को पहचानने लगोगे। बहरहाल इल्म के बारे में और किसी ने सवाल किया माल अफजल है या इल्म अफजल है? तो हज़रत अली फरमाते हैं इल्म अनबिया की विरासत है, मीरास है। क्या बात है। माल जो है शद्दाद और फिरौन की विरासत है। बहरहाल ये तमाम सवालात हैं, तो पता चलता है इल्म की बहुत अहमियत होती है। हर मज़ाहिब में इल्म के लिए फरोग दिया गया है, इल्म हासिल करना है। इल्म एक एलिवेटर होता है, मतलब सीढ़ी की तरह होता है समाज में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बगैर इल्म के इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, हमें चाहिए इल्म हासिल करना है। अब इल्म के बारे में हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को जैसे पढ़ने के लिए कहते हैं, हमारी बात नहीं मानता, गुस्सा करता है, थोड़ा चिड़चिड़ करता है, हमारी बात नहीं सुनता, स्कूल को नहीं जाता बराबर से। और कुछ लोग होते हैं बच्चा तो पढ़ाई पढ़ता है डॉक्टर साहब, लेकिन उसका हाफिजा कम हो चुका है, मतलब यादाश्त नहीं है, इम्तिहान में कमजोर हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमने बात की इल्म की अहमियत क्या होती है। हर मज़ाहिब में देखिए पुराने जमाने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन जो है उस जमाने में वो दूर की जगह थी, तो कहा था कि चीन तक भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। इतनी एक इल्म की अहमियत है। कुरान मजीद में हमने बारह उसमें फरमाया था कि बहुत से जगहों पर इल्म की मतलब वो ताकीद की इल्म हासिल करो। वहाँ का सिविलाइजेशन भी बहुत मशहूर था, कामयाब उस जमाने में है। तो वो हिसाब से तो इल्म की बहुत अहमियत है। आप देखिए ये एक तरफ से मालूम होता है कि इल्म बहुत अफजल है, इल्म को हासिल करना है फरीजा है, फर्ज है। इल्म को हासिल करना एक फरीजा है, फर्ज है। अब जवाहरत का करिश्मा इंसान को कैसे मदद कर सकता है? देखिए पढ़ाई के लिए जब बचपना होता है इंसान बोलना सीखता है, जैसे हमने डिस्कस भी किया है, उसका याददाश्त। देखिए इल्म का जो मेन जो कनेक्शन होता है वो होता है याददाश्त से। देखिए जो पढ़ाई पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड में हैं या इंटरमीडिएट में हैं या पीयूसी में हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो तेलंगाना और आंध्रा में जो इंटरमीडिएट कहा जाता है, कर्नाटक में पीयूसी कहा जाता है। तो ये हिसाब से सेकेंड ईयर जो होता है तो ये हिसाब से होता है। अलग अलग इम्तिहान होते हैं, डिग्री होते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, मतलब आला तालीम होती है। बहरहाल ये तमाम चीज़ों में इंसान आगे बढ़ने के लिए एग्जाम में लिखना पड़ता है। आपके पास जितनी भी नॉलेज हो, जितना भी इल्म हो, जब तक तुम पर्चे में बराबर से भरपाई नहीं करोगे आपको उतने मार्क्स मिलने वाले नहीं है। भरपाई करने के लिए याददाश्त का बड़ा रोल रहता है। देखिए जब तक आपने पढ़ाई को याद नहीं किया आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। याददाश्त कहाँ कमजोर होती है? हम कहते हैं सितारों की गर्दी से इंसान को बुलापा आता है। मरक्यूरी एक ऐसा सितारा है जो इंसान के दिमाग को चलाता है, अक्ल को चलाने वाला है। इंसान की अक्ल क्या होती है, इंसान की याददाश्त क्या होती है? जब मरक्यूरी कमजोर हो जाता है इंसान को बुलापा जाता है। पढ़ते हैं बहुत, जैसे ही एग्जाम हॉल पर गए लिखना शुरू किया भूल गए, क्या आंसर लिखो समझ में नहीं आता। आते हैं बहुत से लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खुद इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंट है, इतना अच्छा पढ़ता है, सुबह 4 बजे उठ जाता है, रात के 11 बजे तक पढ़ता है, लेकिन इम्तिहान में मार्क्स 40% भी लेकर नहीं आ रहा है, 30% लेकर नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है।
सितारों की गर्दी जब हावी हो जाती है, इंसान के अंदर भुलापा आ जाता है, मुश्किलात आ जाते हैं, परेशानी आ जाती हैं। साथ में जुपिटर का कमजोर होना इंसान की पढ़ाई में रुकावटें पैदा कर देता है। देखिए वजह जो भी है, बहुत से लोग होते हैं घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन आजकल तो इतना सोसाइटी बना दिया गया, इतने मतलब अलग अलग इदारे बना दिए गए हैं कि पढ़ाई को आगे दो, पढ़ाई को आगे बढ़ो, पढ़ाई, क्योंकि ये एक वाहिद तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का वो है इल्म। इल्म से दुनिया में इंसान आगे बढ़ सकता है। जो चांद तक जो गए हैं इल्म के जरिए से, बगैर इल्म से कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा जवाहरात का करिश्मा पहचानना है, इल्म वालों को पहचान सकते। क्यों? अल्लाह ताला की निशानियां हैं। जब तक तुम अल्लाह ताला को नहीं पहचानोगे, उसकी बनाई हुई चीजें को नहीं पहचानोगे, उसकी नेमतों को नहीं पहचानोगे, ये कैसे समझ में आता है? मैं बता रहा हूं लोगों को, मतलब ये जो हम बता रहे हैं जवाहरात जो है नेमतुल्लाह है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी का नाम है जवाहरात। तो ये इसको पहचानने के लिए भी इल्म की जरूरत होती है। हमने पहले भी कहा था बारहा कि इंसान की जिंदगी में जब परेशानियां आती है, मुश्किलात आती है, उसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में उसका राह हल भी रखा हुआ है। हमें बशर्त यह है कि इंसान को चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल करे, इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल करते हैं तो अक्ल काम करती है, अक्ल जब काम करती है तो अमल में आता है। परेशानी आ गई, जैसे इंसान को भूख लगी तो अक्ल ने कहा कुछ खाने का मन करो, कुछ खाओ बोल के, जैसे मतलब अक्ल ने हुक्म दिया, दिल ने हुक्म दिया, इंसान क्या करता है? अमल करता है। अमल क्या है? खाना शुरू करता है। जैसे प्यास लगी, इंसान ने पानी देखा, पानी पीने का मन लगा। पानी मतलब इंसान को जान, मतलब इल्म है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, उसको कहा जाता है इल्म। जिस चीज को इंसान देखता है, देखकर उसकी जहन में आ जाए ये चीज ये है, उसे कहते हैं इल्म। जैसे इंसान उस पानी को लिया, अपनी प्यास बुझाने के शुरू कर, उसे कहते हैं अमल। जब इल्म इंसान हासिल करके अमल में जब लाता है, इंसान जिंदगी कामयाब रहती है। वाहिद एक ही रास्ता है समाज में तमाम रसूमात को ख़त्म कर, परेशानियों को ख़त्म करके आगे बढ़ने के लिए। अगर इल्म आ जाए तो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। जैसे कि आपका सवाल है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इम्तिहान चल रहे हैं, बहुत से लड़के, अभी हमारा बच्चा भी एग्ज़ाम लिख रहा है, तो ये सब सभी के लिए एग्ज़ाम चल रहे हैं। मार्च का महीना है, तो हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पर एग्ज़ाम चल रहा है। हम दुआ सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन जहाँ पर मुश्किलात आते हैं, या बुढ़ापा हो, या याददाश्त कम होना, या पढ़ाई में कमज़ोर हो जाना, उसके पीछे है सितारों का रोल। उसको डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की नेमत से फ़ायदा उठाइएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने आज हमारे प्रोग्राम से आज जुड़े हैं, उन्होंने भी देख लिया कि मतलब आपने जिस तरह से माशाल्लाह जवाब दिया, कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दिया है, आयत पढ़ के भी जवाब दिया, तो उनको भी एहसास हो गया होगा कि इंसान को इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद सालार है, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद सालार साहब औरंगाबाद से। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं सर, बच्चे के बारे में पूछना है। नाम बताइए बच्चे का। बच्चे का नाम मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। उनकी हाँ। तारीख पैदाइश? 1/9/1991। 1/9/1991। वक्त मालूम है पैदाइश का आपको उनकी? हाँ, फजर के 5:55। 5:55 फजर के। ये सलार साहब आप कब से प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? मैं तकरीबन 3 महीने से कंटिन्यू देख रहा हूँ सर। आज आपने पहली बार कॉल किया इस प्रोग्राम में? हाँ, खास हाँ। करके आज पहली बार लग गया सर, चांस लग गया। जी जी। चलिए इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल किया। आप क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सालार साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आपका चेहरा देखता हूँ हंसता हुआ, ऐसा लगता है 100 ऊँट कुर्बान कर दूं। क्या बात। शुक्रिया जनाब, और शुक्रिया गरीब हूँ, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। और गरीब हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ। सर जिसका दिल बड़ा हो उसको गरीब नहीं कहा जाता। अभी हमने कहा ना, माल और इल्म के बारे में बताया ना, सबसे बड़ा पैसे वाला कौन होता है दुनिया में? हाँ बरोबर है साहब, जिसके पास इल्म वही पैसे वाला होता है। इज्जत अफसाई का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह सलामत है। आप अपने बेटे के बारे में और ये जानना है? आपका प्रोग्राम जो है तो क़यामत तक चलते रहे, भले हमारे चेहरे सूरतें बदल जाए लेकिन क़यामत तक चलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की नेमत से इंसान को फायदा उठाने के लिए हम रहें ना रहें, ये लेकिन ये जवाहरात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की निशानियां हैं, नेमतें हैं, जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि हजारों साल से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा इंशाअल्लाह। देखिए जना, जैसे कि आपका सवाल है, देखिए अभी उन्हें बता रहा था कि क़यामत तक चलते रहे,
اب تو ہم آ کے لوگوں کو سروس دے رہے ہیں، ہماری فیملی 70-80 سال سے، جی اس سے پہلے بھی تھا، صحیح، اس سے پہلے بھی تھا، بالکل جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تب سے یہ چلا آ رہا ہے۔ بالکل۔ انسان کی سوچ نے کام کیا، انسان کی عقل نے کام کیا، انسان نے جیسے جیسے آگے بڑھا، مطلب تجربہ بڑھتے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے، علم بڑھتے جا رہا ہے، دوا کے طور پر آج کل جواہر استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بڑے بڑے بیماریوں کو، کینسر وغیرہ کے لیے جواہرات کو گھول پیس کر پلایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے، سائنس۔ بہرحال محمد عمران کے بارے میں صاحب نے فون کیا ہے، جاننا چاہتے ہیں ان کا۔ دیکھا جائے تو پیدائش کا دن ہے، سنڈے کے دن جنم ہوا ہے ان کا۔ پڑھائی کے معاملے میں اگر علم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تھوڑا کمزور ہے، نالج کمزور ہے، بھلاپا زیادہ ہے، تھوڑا مائنڈ کنفیوژن رہتا ہے، پڑھائی میں رکاوٹیں دکھا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ابھی ہم بتا رہے تھے، جب جوپیٹر کمزور ہو جاتا ہے پڑھائی میں بریک ڈال دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا، نالج بھی کم کر دیتا ہے، ٹینشن میں ڈال دیتا ہے۔ ساتھ میں سن کمزور، جس میں کیا ہوتا ہے اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی زندگی میں ذمہ داری بڑھ رہی ہے لیکن بچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، تھوڑا مائنڈ کنفیوژن رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس، احساس کم تری، کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ میرے سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا میں کام یہ کروں یا اگر موڈ سوئنگس رہتا ہے اس کا، مطلب ابھی ایک سوچتا ہے بعد میں ایک سوچتا ہے، اکیلا پن محسوس کرنا، چار لوگوں کے بیچ میں بات نہیں کر پانا، یہ تمام چیزیں بچے کے اندر دکھا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، جب سن کمزور ہو جاتا ہے انسان لوزنگ سیلف کانفیڈنس، ہمت ہار جاتا ہے، مائنڈ ڈسٹرب رہتا ہے۔ جوپیٹر کمزور ہونے سے کیا ہوتا ہے، پڑھائی کو لے کر پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے محمد عمران صاحب کے لیے چاہیے ایک یاقوت، روبی کہتے ہیں 3 کیرٹ کا، ساتھ میں ایلو سفیر پکراج کہتے ہیں 3 کیرٹ کا، دونوں بنا کر پہنائیے گا، زندگی میں خوشی ملے گی، ہمت بڑھے گی، بچہ آگے بڑھے گا، اسٹیٹس اچھا نام آئے گا، زندگی میں خوشحال رہیں گے۔ وش یو آل دا بیسٹ سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ، وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام جواہرات کا کرشمہ۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں کنگ آف جیمز، ایمیننٹ جیمولوجسٹ، بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ رضا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آپ بھی اگر ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں، تو ایک بار ضرور ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ اور جو ہمارے وشاکھاپٹنم کے ناظرین ہیں وہ ایوری ویزڈے یعنی کہ ہر 4 جمعے کو، ہر بدوار کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک۔ اور جو وجے واڑہ کے ناظرین ہیں وہ ایوری تھرسڈے یعنی کہ ہر جمعرات کو ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو اپائنٹمنٹ لینا ہوگا فون کے تھرو۔ فون نمبر جو ہے اسکرول ہو رہا ہے، اور جو ہمارے بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ناظرین، وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، عمران، کرناٹک، رائچور سے، رائچور ڈسٹرکٹ، کرناٹک اسٹیٹ۔ عمران احمد رائچور۔ ہاں اپنے بارے میں بات کرنا ہے عمران صاحب؟ سر میرے بارے میں سر اپنی تاریخ پیدائش بتا دیجیے، ڈیٹ آف برتھ۔ 16 جولائی جی 1990، 1990۔ جی وقت معلوم ہے پیدائش کا ٹائم؟ ہاں اثر کے ٹائم پہ، عصر کے وقت پیدائش ہوئی آپ کی۔ کیا جاننا چاہتے ہیں عمران صاحب؟ ڈاکٹر ایم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم عمران احمد صاحب، السلام علیکم صاحب۔ فرمائیے جناب کیسے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ، آپ کی دعا ہے۔ ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، لیکن ستاروں کی گردش آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ہاں وہی کام کو بھی پکڑتے وہ سکسیسفل نہیں ہوتا۔ گردش کا مطلب ہوتا ہے جو بھی کام کرو، کام میں ناکامی، پڑھائی میں ناکامی ملی، محنت کرتے ہیں رزلٹ نہیں ملتا، ہر کسی کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کا سپورٹ نہیں ملتا، کنفیوژن۔ ہاں میرے بھائی آج صحیح تو رہے گا، اللہ سلامت رکھیے آپ کو۔ تو ایکچولی ذائقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہر کام میں رکاوٹ، ترقی رکی ہوئی، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، گھر میں حالت صحیح نہیں ہے، پریشان ہیں سارے کے سارے، ایجوکیشن بریک ہو چکا ہے، پلاننگ پورے فیل ہو رہے ہیں، سوچتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک، سوچتے ہیں کہ دائیں جان زندگی آتی ہے بائیں کی طرف، ناگہانی پریشانیاں بدنام ہوتا رہے، گھر میں حالت صحیح نہیں ہے، مزاج بھی خراب ہو رہا ہے،
बाएं तरफ सर का दर्द रहेगा, जब भी चोट लगेगी बाएं तरफ लगेगी, या बाएं हाथ में लगेगी, बाएं पैर में लगेगी, घुटने में लगेगी, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको बाएं तरफ आएगा, क्योंकि आपका सन पूरा कमज़ोर, जिसमें क्या होता है बाएं तरफ पूरी परेशानियां खड़ी कर देता है। प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, सुकून नहीं है, डिस्टर्बेंस है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, ये तमाम परेशानियां आपके ऊपर पड़ी हुई हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का पहनना है, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का। ये दोनों पहनने से क्या होता है, आपको तरक्की मिलेगी, नए नए कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, काम में आगे बढ़ेंगे आप, सेहत भी अच्छी रहेगी, लाइफ में एक स्टेबल लाइफ रहेगी, ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, हेल्थ ठीक हो जाएगी, जो सर का दर्द हमने बताया वो भी ख़त्म हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अजमेरी है, मैं मोहम्मद से बात कर रही हूँ सर। अजमेरी। हाँ। अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे पापा के बारे में बात करना है। पापा का नाम बताइए। मोहम्मद ख्वाजा। मोहम्मद ख्वाजा। तारीख पैदाइश उनकी मालूम है? तारीख पैदाइश है मालूम, उनकी अम्मी का नाम पुतली बेगम है। क्या नाम है उनकी अम्मी का? पुतली बेगम है जी। क्या जानना चाहती हैं अपने पापा के बारे में? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकती हैं जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अजमेरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा सर, 3 महीने से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की। अल्लाह सलामत रखे। आपके डैडी के बारे में जानना है? हाँ सर, तबीयत के बारे में जानने का है। आप इतना डरी हुई क्यों हो फोन में बात करने के लिए? नहीं जरा डर होता सर, फोन कट हो जा रहा था हर बार, इसलिए बोल के। अरे फोन कट हो जाता है बोल के। देखिए एक्चुअली आपके डैडी के बारे में अगर देखा जाए, मर्क्यूरी कमज़ोर, वीनस कमज़ोर, कारोबार में तरक्की नहीं है, हर काम में रुकावट है, तरक्की नहीं मिलती है, लाइफ में बहुत परेशान है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। रीज़न क्या है? मर्क्यूरी कमज़ोर है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है कारोबार के तरक्की को काट देता है। सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, आपके डैडी की ज़िंदगी में आज तक कोई एक गोल नहीं है, एक एम नहीं है, एक मकसद नहीं है आज तक, क्योंकि मर्क्यूरी जब कमज़ोर हो जाता है इंसान मकसद भूल जाता है, फैसला लेना नहीं जानता, क्या करूं, कौन सा काम और समझ में नहीं आता, ज़िंदगी में सब्र का पैमाना ख़त्म हो जाता है, महारत ख़त्म हो जाती है, टेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में वीनस कमज़ोर होने से क्या होता है फाइनेंशियली को ज़ीरो हो जाता है। ये तमाम परेशानियां आपके वालिद साहब के जायचे में दिखा रही हैं। हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, कमज़ोरी, रगों की कमज़ोरी आती है, खाने पीने में ध्यान भी नहीं रहता, खाने पीने में क्या होता है थोड़ा उल्टी जैसा, मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर हैदराबाद की ज़ुबान में मतली हो रहा है कहते हैं, मतली का मतलब खै जैसे होना, खाने के लिए मन नहीं करना, भूख नहीं लगना, ये तमाम परेशानियाँ आपके वालिद साहब इसमें दिखा रहे हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुखराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये दोनों पहनने के बाद कारोबार में तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगा, सेहत अच्छी हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल ट्रबल जो होता है एमराल्ड ख़त्म कर देता है, उस चीज़ को, कमज़ोरी को ख़त्म कर देता है, भूख लगती इंसान ज़िंदगी में सेहत रह सकता है, खुशहाल रह सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद आसिफ पूना से। मोहम्मद आसिफ। यस सर। पुणे से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, क्या करना? अपने बारे में बात करना है? हाँ सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1/8 जी 1968। 1968 1968। 68 यस सर। अच्छा, वक्त तो मालूम पैदाइश का? नहीं सर। जी। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में बात कर सकते हैं जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फरमाइए जनाब, अपने बारे में जानना है? हाँ साहब, 2 साल से प्रोग्राम देख रहा सभी। ओके। 2 साल की रमजान में 2 साल हो गए प्रोग्राम चालू था, लेकिन फोन ही नहीं लगता था। 2 साल से ट्राई करते हो, लाइन आज मिली है, बहरहाल आपको सलामत रखे, ज़िंदगी में खुशी दे, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाए, आमीन सुमा आमीन। देखिए मोहम्मद आसिफ साहब, आपके जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, कर्जा कर लेते हैं,
जुपिटर कमजोर है, कर्जे में डूब जाना, मुश्किलात, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ भी रुका हुआ, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा हैं। साथ में सन सिटिंग इन द 12th हाउस, जिसमें क्या होता है, सेहत भी खराब रहती है। हेलो, हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ ये जी। तो एक साथ से खराब है। हाँ जी, सेहत भी खराब हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम आता है, बैक बोन का मतलब बोन की प्रॉब्लम होती है। जब सन 12वें घर में बैठ, हाँ मेरे भाई, जो हम बता रहे वही रहेगा, चेंजेस नहीं रहेगा। हमने वो स्टडी की है, डॉक्टर साहब को, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनको स्कैनिंग देखकर बोलना पड़ता है कि क्या हुआ है, दर्द कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हमने जो सीखा है बगैर देखे के बोल सकते हैं कि क्या परेशानी, मुश्किलात क्या है, लेकिन शिफा वहीं से मिलेगी आपको। बेशक। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हमने कभी भी दावा नहीं किया है कि हम कर रहे हैं, सिर्फ हम दवा देते हैं, हम रास्ता बताते हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बाबर का ज़ाती तमाम दुनिया को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा हुआ है। इस तमाम दुनिया का, देखिए इस दुनिया के अलावा और कितनी दुनिया है, सभी को चलाने वाले ज़ात जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। शिफा वहीं से मिलेगी, क्योंकि हमने लास्ट हफ्ते भी कहा था, दुनिया में हुज़ूर फरमाते हैं, बहुत से लोगों ने आए, थोड़ा वक्त लगेगा तो लोगों को मज़ा भी आएगा, थोड़ा मालूम होगा कि जवाहरात का कितना असर होता है। बहुत से लोग आते हैं, हुज़ूर मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते हैं, तो लोग आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर पहले से लिख दी है तो हम दुआ क्यों मांगना है, बीमारी के लिए दवा क्यों लेना है? तो अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसके साथ दवा ना उतारी हो। मतलब हर बीमारी के साथ दवा भी उतरी हुई है, साथ में शिफा भी है, सिर्फ दो चीजों के अलावा। वो लोग पूछे दो चीजें क्या है, कहते हैं बूढ़े को जवान नहीं बना सकते। कोई 90 साल का बूढ़ा कहेगा मैं जवानी शबाब में जाना है, मेरे को एंजॉय करना है, 90 साल का बूढ़ा जवान बनने वाला नहीं है, मुर्दा जिंदा होने वाला नहीं है। दो चीजों के अलावा हर चीज को चेंज किया जा सकता है अल्लाह ताला की नेमतों से, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में हर बीमारी की शिफा रखी है, दवा भी रखी है। बहरहाल आसिफ साहब को स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, बोन की प्रॉब्लम है, हड्डियों का दर्द, अभी बता रहे थे ना, जो चीज डॉक्टर एक्सरे देखने के बाद, स्कैनिंग देखने के बाद बताता है, हम बता देते हैं। अभी हम जब आने से 1 घंटा पहले एक क्लाइंट हमारे पास आए थे, जैसे हमने देखा शादी होकर 11 साल हुआ है, हमने कहा कि थोड़ा हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है आपका, बच्चे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा आपका गायनिक इन्फेक्शन से प्रॉब्लम है। वो मतलब इतना परेशान डॉक्टर साहब, इसीलिए हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, वो मतलब कश्मीर से आए हैं, वो बता रहे हैं जो चीज हमने बताई ना आप कैसे बता दे रहे हैं। तो वो हिसाब से सिस्टम होता है, एक निजाम होता है, लेकिन शिफा वहीं से मिलेगी, लेकिन दवा लेना पड़ता है। बहरहाल तो ये सच, मोहम्मद आसिफ को थोड़ा हेल्थ की भी इश्यूज है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, खर्चा भी कर चुके हैं, परेशानी में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलने के लिए नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत से फायदा उठाइएगा। आपकी चाहिएगा एक येलो सफायर, पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए अभी हम बता रहे हैं तो हाँ साहब एक साथ से चल रहा है, प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, शिफा है जवाहरात में हर प्रॉब्लम की, हर मुश्किलात की, चाहे शादी की प्रॉब्लम हो, चाहे सुकून की प्रॉब्लम हो, चाहे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जॉब की प्रॉब्लम हो, मतलब कारोबार की प्रॉब्लम हो, हर मुश्किलात का हल जवाहरात में है। तो बशर्ते एक इंसान को चाहिए आगे बढ़े, जाने की मुश्किलात क्यों आ रही है उसे बाहर निकलने के। अभी हम बता रहे थे स्टार्टिंग में तालीम के बारे में, इल्म के बारे में। इल्म में भी इंसान कब नहीं सीखता, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। तो ये सच, बहरहाल इसको अपनाने से जिंदगी में खुशी मिलती है, कामयाबी कदम चूमती है। जी सही बात है। और आसिफ साहब ने ये बोला कि वो पिछले 2 साल से प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लग पा रहा है, तो हालांकि नंबर दिए हुए उनको कॉल करके आपसे मशवरा लेना चाहिए। जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, इतने सालों से परेशान है। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब 8 साल से खाली हूँ। अभी एक बंदा आया, दुबई में काम कर रहा था, 2011 से हैदराबाद आए हैं, अभी तो कुछ काम नहीं है, मतलब काम की तलाश में 6 साल से खाली हूँ। ये तमाम परेशानियां देखिए, 5 साल से खाली हैं, 10 साल से खाली हैं, आपको आगे बढ़ना है। ये एक विजिट है। वो लोग सोचते हैं, बहुत से लोग फोन करते हैं, साहब आप कश्मीर को आ जाइए, आप दिल्ली को आ जाइए, कहाँ जाएं, यहाँ पे कितने लोग, कितनी मसरूफियात हैं, आप यहाँ पे रहे तो मालूम पड़ता है। मतलब
लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो आपकी जिंदगी, एक बार सफर लगाइएगा, आप इंडिया के अंदर किधर भी ना, अगर आप ट्रेन का सफर भी करेंगे 2 दिन में आप पहुंच सकते हैं हमारे पास, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, विजयवाड़ा, जहां पर भी हो। दुनिया के बाहर वालों को हमने दुबई में ले रखा, बहरहाल वो अलग अपॉइंटमेंट से रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए अगर आप कश्मीर से भी निकल के आ रहे हैं 2 दिन में आराम से पहुंच सकते हैं, जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी है। देखिए दुनिया में आप किधर भी जाए, जब तक आप मशवरा नहीं लोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मशवरा, कुरान में भी बताता है कि मशवरा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। जंग अहज़ाब, जंग खंदक में जब लश्कर मतलब कुफर ज्यादा थे, हुसैन की तादाद कम थी, तो सलमान फारसी ने कहा जो सहाबी थे, या रसूल अल्लाह, एक खंदक को खंदक कहते हैं खड्डे, क्योंकि लोग वहां से छलांग ना लगा पाए। एक मशवरा दिया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, इल्म था, दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी उम्मत को बताने के लिए मशवरा लेकर, मशवरे के बाद उसको अमल किया। तो ये हिसाब से हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मशवरा लेना है। मशवरा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चाहे कोई मशवरा हो, कारोबार के सिलसिले में हो, शादी के सिलसिले में हो, पढ़ाई के सिलसिले में, कौन सी पढ़ाई पढ़ना, एक मनसूबाबंदी, मास्टर प्लानिंग जिसको कहते हैं, एक मास्टर प्लानिंग बना सकते हैं। तो हिसाब से बनाकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप भी डॉक्टर एम रज़ा साहब से मशवरा हासिल करना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे और आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ मुश्किलात दूर हो जाएँ, तो एक बार ज़रूर डॉक्टर साहब से आके मुलाकात कीजिए। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर बुधवार को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर एम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। टाइम वही रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से हमारे नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और खुशहाल बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आगरा से ज़ेबा बात कर रही हूँ। ज़ेबा जी जी, अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मुझे अपने भाई की पूछना है। भाई का नाम बताइए। जी भाई का नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ जी। उनकी तारीख पैदाइश? तारीख पैदाइश कंफर्म नहीं है, लेकिन 4 मार्च 1981 है। 4 मार्च को। नहीं तो लेके अपनी वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए। जी रेहाना नाम है। रेहाना जी। अपने भाई आसिफ के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? हमारे साथ किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रज़ा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। भाई के बारे में जानना है? जी। छोटी बहन है, बड़ी बहन है? जी छोटी बहन हूँ। क्या जानना है आपको? जी उनके बारे में जानना है, उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाए और सब कुछ सेटल हो जाए उनकी लाइफ में। वो सुन रहे हैं वहाँ पे हैं वो? जी। आपके भाई हैं वहाँ पर? आपके भाई वहाँ पर हैं? जी है, भाई हैं। थोड़ा दीजिए उनको। जी अच्छा। हेलो। सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ साहब। हाँ जी। कैसे हैं जनाब? जी ठीक है। देखिए थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है। जी ठीक है जनाब। आपने टीवी की वॉल्यूम रखकर, खैर बहरहाल मैं बता देता हूँ, आराम सुन लीजिएगा। देखिए नाम से देखा जाए मोहम्मद आसिफ नाम है, रेहाना माँ का नाम है, इसे देखा जाए तो माइंड कन्फ्यूजन रहता है, सही बात नहीं कर सकते, टेंशन ज़्यादा, कम्युनिकेशन भी कमज़ोर है, थोड़ा कमज़ोर रहता है, कारोबार में तरक्की नहीं है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, शादी की लाइफ भी परेशानी की दिखा रही है, मिजाज भी ख़राब है, चारों तरफ से अंधेरे की ज़िंदगी है। इसका मतलब क्या होता है
ایک طرف سے پروفیشن زندگی میں پریشانی ہے، ایک طرف سے پرسنل لائف بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت بھی خراب ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں ہے اندھیرا ہی اندھیرا، جس کی مین وجہ سن اور مون کا کمزور ہونا آپ کی زندگی کو اندھیرا بنا دیا ہے، پریشان کر رکھا ہے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے آپ کو چاہیے یاقوت 3 کیرٹ کا، ساتھ میں سچا موتی 3 کیرٹ کا، دونوں بنا کر پہنیے گا، زندگی میں خوشی ملے گی، کامیاب رہیں گے۔ وش یو آل دا بیسٹ سر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ ہے۔ اس پروگرام سے یا راسخ جیمز اور جویلر سے کس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، ان کی زندگی میں کس طرح سے خوشحالی آئی ہے، ان کی زندگی کس طرح سے بدل گئی ہے، لوگوں کا کیا کہنا ہے، ہم اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ عظیم کائنات حسین بھی ہے اور رنگین بھی۔ حسن و رنگ کے امتزاج سے بھرا کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر قدرت کے عطا کردہ کمالات سے بھرپور ہے۔ کسی ذرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس فلسفے کو جاننے والے تو بہت سے ہیں، لیکن سمجھنے والا ذہن اور پرکھنے والی آنکھ ہو تو بات بنتی ہے جناب، اور ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دور میں ایسی ہستیاں ہمارے بیچ موجود ہیں۔ نام ہیں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب، راسک جیمز اینڈ جویلرز کے کرتا دھرتا۔ ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے۔ ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری، لاجک، سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز۔ ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی۔ اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا، تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا۔ میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدک سیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا، ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی۔ ایم حسین کے 2 لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا، اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے راسک جیمز اینڈ جویلرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا۔
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की किस्मत बदली। इसका इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने किस तरह से तरक्की करी, उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और आपकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, तो एक बार ज़रूर रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कोटेशन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ। तो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, खुशहाल बनाइए, खुशगवार बनाइए और एक बार रासिक जेम्स और ज्वेलर्स तशरीफ़ लेके आइए। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? सर हम जम्मू से बात कर रहे हैं। जम्मू से कौन साहिबा बात कर रही? जी सर। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम नाजिया रशीद। जी नाजिया रशीद। नाजिया रशीद। आपको अपने बारे में बात करना है? सर मुझे अपनी मम्मा के बारे में बात करनी है। मम्मी का नाम बताइए। जी उनका नाम फरीदा बेगम। फरीदा बेगम। जी। तारीख पैदाइश आपको मालूम है क्या? जी सर तारीख पैदाइश तो नहीं पता। अपनी नानी का नाम बताइए। साज बेगम। क्या नाम बताया? जी सर साज बेगम। साद बेगम। जी सर। जी, अपनी मम्मी के बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर। सलाम अलैकुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सर बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मम्मी के बारे में जानना है? जी सर। देखिए, मम्मी का जो नाम दिया है फरीदा बेगम। जी जी सर। साद बेगम नानी का नाम है। जी जी सर। थोड़ा माइंड कंफ्यूजन रहता है, हैबत खाती हैं, बेचैन रहती हैं, घबराहट ज्यादा होती है, अकेलापन महसूस होता है। हाँ, माइंड डिस्टर्ब रहता है, हर चीज में रुकावटें हैं, कोई काम नहीं बन पा रहा, रिश्तेदारों में किसी का सपोर्ट नहीं है, प्लानिंग्स पूरे फेल होते हैं,
परेशानियां बहुत हैं, मिजाज भी खराब हो रहा है, कमर का दर्द आता है, बोन की प्रॉब्लम दिखा रही है। बचपन से स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, लेकिन आज भी स्ट्रगल चल रहा है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन बहुत परेशानी की ज़िंदगी चल रही है। शादी के लाइफ में भी थोड़ी मुश्किलात देखे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपके अम्मी को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। जो चीज़ दिमाग में नेगेटिविटी आती है, इनके नाम से देखा जाए हर चीज़ नेगेटिविटी होती है। जो पॉजिटिविटी है उसको नहीं सोचती, जो नेगेटिव उसको ले लेती हैं। अभी कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, अकेलापन महसूस करना, डिस्टर्ब रहना, डिप्रेशन में रहना, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी कौसर बेगम। कौसर बेगम, कहाँ से बात कर रही हैं? गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा। अपने बारे में बात करना? जी हाँ। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 31 जनवरी 1990। टाइम मालूम है पैदाइश का? जी रात में। रात में किस टाइम, कुछ पता है? नहीं। ओके। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं कौसर साहिबा? आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, हैदराबाद से बात करेंगे। अपने बारे में जानना है? जी हाँ, मेरे बारे में जानना। देखिए साहिबा, आपने डेटा पर जो दिया उसके हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा डिस्टर्ब है, पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब दिखा रही है आपकी। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, छोटी छोटी बातों को थोड़ा परेशानियां ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती हैं, नाइतफाकियाँ ज़्यादा दिखा रही हैं, मिजाज भी ख़राब है, थोड़ा सेहत भी ख़राब है आपकी, डिस्टर्ब हैं, घर में भी हालत सही नहीं चल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, मूड स्विंग्स हैं, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, सुकून भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, जिसकी मेन वजह है जुपिटर का कमज़ोर होना। जब जुपिटर कमज़ोर हो जाता है औरत के जायचे में, शादी के लाइफ में परेशानियाँ खड़ी कर देता है, शादी को रुकावट, शादी के बाद भी थोड़ा गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, सेहत के ऊपर असर करता है, एक स्टेबल लाइफ नहीं रहती, परेशान रहती है, डिस्टर्ब रहती हैं। ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए चाहिए एक येलो सफ़र पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ हासिल किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।